اور دعا سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری ہم تیرے پاس سجدہ کرتے ہیں، یا تعالیٰ گناہوں کو رپینٹ کرتے ہیں۔ خدا ہم گناہگار ہیں، معاف کر خدا۔ جب تیرے کلام کو پڑھتے ہیں جو پاک اور قدوس ہے، اور خدا لیونگ ورڈ آف گاڈ ہے، جب پڑھتے ہیں غور کرتے ہیں ہمارے ساتھ پاک روح کور کر یسوع تیرے لہو میں ہم کور ہو جائیں۔ خدا کلام کا جو بیج بوئے جیسا ہوگا نا 60 نہ پھالا۔ یسوع مسیح ناصری تو ہی بول اور کلام کرنا، تیرا نام جلال پائے۔ تو یسوع مسیح کے پیارے نام سے کرتے فضا کے پر یسوع کا لہو مانگتا ہے خدا، اور سارا کنٹرول تجھے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری تو ہی مدد کر، یسوع مسیح تو ہی بول اور کلام کرنا، تیرا نام جلال پائے یسوع مسیح کے پاک نام سے، آمین۔ تو دیکھیں گے خدا کے کلام سے آج ہم ذرا میرے ساتھ کھولیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب۔ پہلی ایسے شروع کر رہا ہوں، ہلیلویا۔ تو کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں، یا ہم کو بعض کی طرف نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور سے سب آدمی جانتے پڑھتے۔ ظاہر ہے کہ تم بھی اچھا جی۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ لکھا ہے ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہے وہ تم ہو، اور سے سب آدمی جانتے پڑھتے۔ ظاہر ہے کہ تم اسی کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ پریز دی لارڈ۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ ہماری طرف سے یا اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکے، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے۔ اس نے ہم کو نئے عہد خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتا ہے مگر روح زندہ کرتی ہے۔ ہلیلویا۔ تو غور کریں گے اس پہ، ہم آج دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام اور ویلکم کرتے ہیں سب کو لورز آف گاڈ انٹرنیشنل منسٹری ہالینڈ میں۔ آج سب کو سلام اور سب کو شالوم، اور سب کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں آج ہم لورز آف گاڈ انٹرنیشنل منسٹری ہالینڈ میں یہاں پر۔ اور میں خدا کا خادم، آپ کا چھوٹا سا خادم خدا کا آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تو اس سے دیکھتے ہیں، اس باب میں مطالعہ کریں گے اس میں پولس رسول پرانے عہد شریعت اور نئے عہد فضل کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ شریعت گناہ کو ظاہر کرتی ہے، مگر یسوع مسیح اور روح القدس انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ یعنی یسوع مسیح اور روح القدس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنا روح ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اور یسوع مسیح اسی لیے آیا تھا کہ تاکہ وہ کیا کرے، شیطان کے کاموں کو مٹائے، اور جو ہے وہ اس نے موت اور ابلیس شیطان گناہ پہ قبر پہ فتح حاصل کی، دنیا پہ غالب آیا، اور اس لیے آیا تاکہ وہ کیا کرے، ہمیں نئی زندگی دے، ہمیں بدل دے۔ ہلیلویا۔ تو مرکزی آیت ہے وہ جو 17 آیت ہے وہی ہے، اور خداوند روح ہے، اور جہاں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اگر ہم سب کے بے نقاب چہرے سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میرے ہم سب اسی جلالی درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں، خداوند یعنی روح کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ یہ بات ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیحیت جو ہے صرف مذہبی رسومات اور قوانین کا نام نہیں، بلکہ روح القدس کے وسیلہ سے دل اور زندگی کی مکمل تبدیلی کا نام ہے۔ یہ دلال تو مسیحیت یعنی کرسچینٹی جو ہے وہ ریلیشن شپ کا نام ہے۔ کرسچینٹی کیا ہے؟ ریلیشن شپ کا نام ہے، خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے اس کا نام ہے کرسچینٹی۔ اب کوئی مذہب نہیں ہے، کرسچینٹی از ناٹ اے مذہب، کوئی ریلیجن نہیں ہے، اور یسوع مسیح کو ریلیجن ایجاد کرنے نہیں آیا تھا، اور اسی لیے خدا یسوع مسیح آیا تھا کہ کیا کریں، ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ رکھیں، اس کے ساتھ یعنی ہم دعا کرتے ہیں تو اس کو دعا میں ہم اس کو ایسے بات کریں جیسے ہم کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہے یسوع مسیح ناصری، اور اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، تو کوئی پرسن جو ہے وہ خدا ہمارے لیے شخصی نجات دہندہ ہے۔ ہم نے مسیحیت کو ایک رسومات، ایک جو ہے وہ قوانین کا نام نہیں ہے، یہ بلکہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمارا جو خدا کے ساتھ زندہ رشتہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار مسیح کا زندہ خط ہے، لکھا ہے تم
تم ہمارا خط ہو جو ہمارے دلوں پر لکھا ہے، جسے سب آدمی جانتے پڑھتے ہیں۔ تم ظاہر کرتے ہو کہ تم مسیح کا خط ہو جو سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے ہے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت یعنی دل کی تختیوں پر لکھا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پولس رسول یہاں پر ہم بتاتے ہیں، خدا کا بندہ بتا رہا ہے یرسل کہ ہر ایماندار ایک زندہ خط ہے۔ بہت سے لوگ شاید کبھی بائبل نہ پڑھیں، لیکن وہ ہماری زندگی کو ضرور دیکھتے ہیں۔ ہاللویا۔ تو ہم زندہ خط ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ، یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے چراغ ہو، تم زمین کے نمک ہو۔ تمہاری زندگی سے جو ہے پڑھ سکتا ہے کوئی خط کے طور پہ، جیسے ہماری زندگی سے پڑھ سکتا ہے کہ بندے کا نام کیا ہے، اچھا یہ کرسچن نام ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہوا ہے، اس کا جو ہے عہدہ کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اور زندگی میں اس میں کیسے اس کے کام ہیں، اور اس کا میرے ساتھ بولنے کا رویہ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھ سکتا ہے کوئی بھی انسان۔ ہاللویا۔ ہماری زندگی سے پڑھ لیتا ہے، ہمارے ملنے سے ہمیں ساتھ یہ جو ہے انسان پڑھ سکتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا لوگ آپ کی زندگی میں یسوع کو دیکھتے ہیں۔ ہم سوال کر سکتے ہیں اپنے آپ سے کہ یسوع جو ہے، لوگ جب مجھے ملتے ہیں تو میری زندگی میں یسوع کو دیکھتے ہیں وہ؟ کیا آپ کی کردار، محبت، معافی، پاکیزگی اور فروتنی آپ پہ نظر آتی ہے؟ تو یہ ہم دیکھیں گے، اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ کیا مجھے کردار سے، میری زندگی سے محبت، معافی، پاکیزگی اور فروتنی نظر آتی ہے لوگوں کو جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں؟ ہماری زندگی ہماری زبان سے زیادہ زور سے گواہی دیتی، یعنی ہماری جو زندگی، ہمارا جو کریکٹر ہے، ہمارا جو بولنا چلنا ہے، ہمارا رویہ جو ہے، ہمارے کام جو ہے ہماری بولنے سے، بیان کرنے سے زیادہ وہ بیان کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تیرا متی جو ہے وہ 5:16 میں اسی طرح تمہاری روشنی آدمی کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر کیا ہے تمجید کریں۔ ہاللویا۔ تو یہ یسوع مسیح نے بھی کہا تمہاری قابلیت خدا سے آتی ہے۔ تو میری مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کسی بات کے خیال کرنے کی قابل ہیں، بلکہ ہماری قابلیت خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی پولس رسول یہاں پر بتاتے ہیں کہ رسول اعلیٰ تعلیم یافتہ، وہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا پولس رسول، جو پڑھا لکھا بندہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا کہ اپنی کامیابی، اپنی جو تھی وہ تعلیم کو اس نے جو ہے وہ سیرا نہیں بنایا، یا اس کو گمان نہیں کرتا تھا، مغرور نہیں تھا وہ بڑا عاجز تھا، بڑا محنت کرتا تھا اپنے ہاتھ سے، اور خدا ان کی صلیب کی پریچ کرتا تھا، نہیں شریعت کو نہیں۔ وہ شریعت کا عالم تھا، وہ فریسی تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن وہ یسوع مسیح کی صلیب کو بیان کرتا تھا اور اس کے دکھ کو بیان کرتا تھا۔ لیکن لوگ کرٹیسائز کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا مسیح ہے، یہ مسیح نہیں ہو سکتا ہمارا، کیونکہ ہمارا جو مسیح، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارا، اور اب بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا جو مسیح آئے گا اس میں 4-5 چیزیں بہت ضروری ہیں اس میں ہونا۔ سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ وہ امن و امان پیدا کرے گا پوری دنیا میں، اور پھر جو ہے وہ یہودی حکومت قائم کرے گا، پوری دنیا میں امن و امان کرے گا، یہودی حکومت قائم کرے گا۔ ہمارا جو ہے وہ صلح کا ہمارے صلح ہوگی چاروں طرف ہمارے لیے، لوگ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں ابھی اسرائیل کو کیا حال ہے، اور شروع سے ایسے ہی ہے، چاروں طرف لوگ اس پہ حملہ کرتے ہیں، وہ فلسطینی بھی کرتے ہیں، مصری بھی کرتے ہیں، وہ ایران بھی اب کر رہا ہے، دیکھیں کیا سال، یہ شروع سے ان کا صورت ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ اور وہ ایسے مسائل کی تلاش میں تھے کہ جو ان کو ان دشمنوں سے بچائے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرے، جو بھی کرے وہ، اور وہ ایسا مسیح بھی ایسے مسائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم کہتے تھے یسوع مسیح ہمارا مسیح نہیں ہو سکتا۔ پولس رسول ان کو بتاتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا، اور وہ مسیح جو ہے وہ آئے گا، ایک دن وہ بھی آئے گا جو یہ لوگ چاہتے ہیں، جو کہتے آ رہے ہیں، ویسا ہی ہوگا، ایک دن آنے والا ہے وہ، کہ جو مسیح یسوع مسیح جب آئے گا تو 1000 سالہ بادشاہی بھی قائم کرے گا، پوری دنیا میں امن و امان ہوگا۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ جو ساری جو باتیں یہ کہتے ہیں لوگ، یہودی جب تک کرتے چلے رٹ جنہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ کرے گا، لیکن اس کے لیے خدا جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، ٹائم خدا جو ہے وہ دے رہا ہے۔ پہلے جنٹائل کو خدا بچانا چاہ رہا تھا، بچا رہا ہے وہ، اس کے بعد یہودیوں کی باری بھی آ جائے گی۔ یہ ساری جو باتیں ہیں وہ پوری ہوں گی، خدا اپنے کلام کو، اپنے وعدے جو خدا کلام میں، جو پرانے ادرام میں، نئے ادرام میں، وہ پورے ہوں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ خدا اپنے کلام کو پورا نہیں کر سکتا، پورا کرے گا۔ یسوع مسیح اپنے کلام کو پورا کرنے پہ قادر ہے۔ ہاللویا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پولس رسول جو اسری جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری قابلیت کچھ نہیں ہے، میں تو مسیح مصلوب کی منادی کرتا ہوں،
جو सलीब पर अपनी जान दी, जो कमज़ोर नज़र आया, देखा कि कमज़ोर है, अपने को बचा नहीं सका, जो तीसरे दिन जी उठा, जो आसमान पर चढ़ गया, दोबारा आने वाला, मैं उसकी मुनादी कर रहा हूँ, मैं किसी और की मुनादी नहीं कर रहा, मैं अपनी मुनादी नहीं कर रहा, अपनी तालीम या अपने तजर्बे की बयान नहीं कर रहा, मैं तो यीशु की मुनादी कर रहा हूँ। और यही उसका मकसद था, और बहुत ज़बरदस्त उसने मुनादी की। 13 उसने खत लिखे, बहुत सारी कलीसियाएं कायम की, बहुत दुखों को बर्दाश्त किया, पर उस संसार भी किया गया। हमने देखा कि पर उस संसार भी कर दिया, मार दिया गया, फेंक दिया गया, फिर भी जी उठा, उठकर खड़ा हुआ, चला गया, उठ खड़ा हुआ, फिर चला गया, चल पड़ा फिर मुनादी करने, और बैत लगे बड़ी दफ़ा। आगे पढ़ेंगे हम पौलुस रसूल के बारे में, अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे किस तरह उसने कैसी कैसी मुसीबतों में से खुदा का बंदा गुजरा है। तो ये है कि हम नए नया अहद ज़िंदगी बख्शता है हमें। पौलुस यहाँ पर जो है वो बयान करता है 6 आयत में, हर मार डालते मगर रूह जिंदा करती है। शरीयत इंसान को उसका गुनाह दिखाती है, लेकिन गुनाह से नजात नहीं दे सकती। शरीयत जो है, आज भी आप देखें तो यहूदी शरीयत पर फख्र करते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो नजात कैसे मिल सकती शरीयत पे? शरीयत पे पूरा नहीं उतर सकता कोई भी। वो अल्फाज हैं, वो रिचुअल्स हैं, पूरे करते हैं वो, और उससे नजात थोड़ी, नजात तो यीशु मसीह दे सकता है हमें। यीशु ने अपनी कुर्बानी के जरिए हमें फजल और जिंदगी अता की। तो यीशु मसीह ने जान देकर अपने बचा लिए। उसका खून जो है, पाक जो खून है हमें बचाता है, उसके खून से हमें निजात मिलती, क्योंकि गुनाह का कफारा खून है। गुनाह का कफारा शरीयत या अल्फाज या जो है वो रस्म और रिवाज थोड़ी होते हैं कोई, तो खून से उसका कफारा होता है गुनाह का हमेशा। मूसा भी इसलिए गुनाह का कफारा, जब मूसा ने भी, खुदा ने मूसा के ज़रिए से जो कुर्बानी का जो था वो कुर्बानी जो थी मुकर्रर की थी। तो ये हम देख, क्योंकि मसीह यीशु में ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दी। रोमियो अगर अदब में 8 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है कि मसीह यीशु में ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया है। निजात अमाल से नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2000 साल से खुदा के खादमीन, खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है, और खुद उनका पाक रूह जो तस्दीक कर रहा है इस बात की कि हमें निजात यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से मिलती है। हमारे माल से, हमारी एजुकेशन, हमारे रुपए दौलत से नहीं मिलती है, हमारे किसी फेम से नहीं मिलती, किसी और जो है वो तरीके से नहीं मिल सकती, बस यीशु के पर ईमान लाने से मिलती है हमें। तो यीशु मसीह का जलाल मूसा के जलाल से कहीं बड़ा है। हम देखते हैं अब यहाँ पर पौलुस रसूल मूसा का और यीशु मसीह के जो मुआज़ना कर रहा है, इसको देखेंगे हम, जो आयत जो उसको देखेंगे हम आगे, हम 7 से 11 आयत में। जब मूसा खुदा के हुज़ूर वापस आया, दूर से वापस, तो उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन वो जलाल वक्ती था। हालेलुया। और यीशु का जलाल जो है वो हमेशा कायम रहने वाला है, क्योंकि नया अहद अब्दी है। यीशु हमें देता है, क्या देता है? गुनाह की मुकम्मल माफ़ी देता है यीशु मसीह, अब्दी नजात देता है। यीशु मसीह में हम रूह कुदस की हजूरी को महसूस करते हैं, पाते हैं, रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी में पाते हैं, हमेशा की उम्मीद हमें मिलती है, इंटरनल लाइफ हमें मिलती है। तो यीशु मसीह में सारी मिलती हैं ये चीज़ें हमें। यीशु मसीह कल और अब तक यकसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो मूसा का जो शरीयत दी है, वही शरीयत की बात हो रही है फिर, और मूसा की बात हो रही है। मूसा ने शरीयत दी थी, जो है वो खुदा से लेकर शरीयत दी, 10 अहकाम दिए, शरीयत दी, लेकिन वो शरीयत नजात नहीं दे सकती थी। जात हमें यीशु मसीह से मिलती है और नए अहद में हमें मिलती है। इसलिए जो है, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमें क्या करता है? हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, हमें अब्दी नजात देता है, और हमें रूह कुदस के वसीला से हमें क्या मिलता है? हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। फिर यीशु ने कहा जो पानी और रूह से पैदा ना हो, निकोदेमुस को उसने कहा था, बड़ा आलम था। यीशु ने कहा तो जब तक तो आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, खुदा की बात में दाखिल नहीं हो सकता। और यीशु मसीह कल और अब तक यकसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे हम देखेंगे, 5वां पॉइंट देखेंगे, मसीह में रूहानी पर्दा हट जाता है। आयत जो है वो देखेंगे हम 14-16 में। लेकिन जब कभी कोई खुदावन की तरफ रुजू करेगा, पर्दा उठ जाएगा। ये खुदावन का बंदा जो है वो यहूदियों के बारे में कह रहे हैं। बहुत से लोग मजहबी हैं, लेकिन अभी तक यीशु को ज़ाती तौर पर नहीं जानते। सिर्फ यीशु ही दिल की आंखें खोल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ही क्या कर सकता है? दिल की आंखें खोल सकता है। हम देखते हैं यूहन्ना जो है वो 8:12 में लिखा है, यीशु ने
کہا کہ دنیا کا نور میں ہے، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یسوع مسیح کے اپنے ذاتی الفاظ ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہاللویا۔ تو یسوع مسیح ہے، وہی ہماری نجات ہے، اس کے وسیلہ سے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ جہاں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے، یہ ہماری مرکزی آیت بھی ہے اور اس پہ ذرا غور بھی کریں گے۔ اور خداوند روح ہے، جہاں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کا روح جہاں ہے وہاں یہاں پر بھی آزادی ہے، خداوند کا روح یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی آزادی۔ میری زندگی، میرے خاندان میں، مسیحوں کی زندگی میں، اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی میں آزادی ہی آزادی ہے۔ ہاللویا۔ یہ آزادی گناہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ یہ آزادی گناہ کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتی ہے۔ ہاللویا۔ یہ ہمیں آزادی ملتی ہے، خدا کا پاک روح ہمیں آزاد کرتا ہے، گناہ کے بندھن سے آزاد کرتا ہے، ابلیس کے بندھن سے آزاد کرتا ہے، خوف سے آزاد کرتا ہے، الزام سے آزاد کرتا ہے، روحانی تاریکی سے ہمیں آزاد کرتا ہے، شیطان کے دھوکہ دہی سے ہمیں آزاد کرتی ہے۔ یہ جو ہے روشنی جو ہے روح القدس کی موجودگی، اس کی پریزنس جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں کن کن چیزوں سے آزاد کرتی ہے؟ گناہ کی غلامی سے۔ خداوند کا خدا روح ہے، جہاں خداوند ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح جہاں ہوتا ہے، ہمیں کیا کن کن چیزوں سے آزاد کرتا ہے؟ گناہ کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے، گناہ پہ غلبہ عطا کرتا ہے، اور سنفل ڈیزائر کینٹ اوور کم، ہمیں جو ہو اس کے رہ نہیں سکتے اس میں قلب میں اس کے وہ، کیونکہ جیزس کرائسٹ ہیڈ اوور کم سنفل ڈیزائر، ہمیں خدا ہی غلبہ دیتا ہے، خوف پہ ہمیں غلبہ دیتا ہے، الزام پہ غلبہ دیتا ہے، اور اس کے بعد روحانی تاریکی سے ہمیں نکالتا ہے خداوند۔ یہ خداوند کا کام ہے، شیطان کی دھوکہ دہی سے ہمیں نکالتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ آج میں ایک ڈیلیورنس دیکھ رہا تھا، ایک بھائی کے دیکھ رہا تھا کوجی میں، کرسٹوفر اوجی کی منسٹری میں، تو دیکھ رہا تھا کہ خداوند کا بندہ اور خداوند کو خدا کا پاک روح ہی بات کر رہا تھا، اور ادھر جو تھا وہ اسپرٹ اور وچ کرافٹ اور شیطان تھا۔ دوسری طرف جو ایک آدمی سے اپیئر ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندے جو بات کر رہا تھا، خدا یسوع مسیح کا بندہ کلام سے بات کر رہا تھا، خدا کا پاک روح بات کر رہا تھا، اور شیطان کے پاس جواب نہیں تھا، وہ لاجواب تھا، کیونکہ وہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر، ایک بات میری یاد رکھی، یسوع مسیح نے صلیب پر جب کہا نا سب کچھ تمام ہوا، تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے موت، ابلیس، شیطان، گناہ پر دنیا پہ غلبہ آیا، اور وہ غلبہ ہمیں اس نے دے دیا۔ اس کے جب ایمان لاتے ہیں، اسی لکھا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے، تمہاری طرف سے نہیں ہے۔ ذرا پڑھ لیتے ہیں، جو ہے وہ خدا کے پاک روح، یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم، خدا کا کلام لکھا ہوا ہے کہ ہم کو فضل سے نجات ملی، اس کے ہمارے کاموں کے وسیلہ سے نجات نہیں ملی، اس کے فضل سے ہمیں نجات ہماری طرف سے نہیں ہے، خدا کی بخشش ہے، ہم اس کو لے نہیں سکتے تھے، اپنے کاموں کے مال کے وسیلہ سے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، یہ خدا کے فضل سے ہمیں ملی ہے۔ ذرا دیکھیں گے افسیوں جو ہے وہ اس کا 2 باب اور اس کی جو ہے وہ 8 ہے، تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی۔ ہاللویا۔ یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، خدا کا فضل ہے، تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ ہاللویا۔ تم کو ایمان کے وسیلہ فضل سے نجات تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، نہ مال کے سبب تک کوئی فخر نہ کرے۔ ہاللویا۔ کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، ہم اسی یسوع میں نیک کمال کے واسطے مخلوق ہوئے، خدا نے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ بات اس لیے مخلوق اس لیے ہوئے، ہم اس لیے مخلوق ہوئے، ہم خدا کے نام کو جلال دیں، کاموں کو بیان کریں، اس کی بادشاہی کو بیان کریں، اس کے نام کو، ہم اس لیے ہوئے، پر ہمیں اس کے ایمان پر اسی لیے یسوع نے کہا تھا جو ایمان لائے اس نجات پائے گا، ایمان لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور یسوع مسیح نے مارتھا سے بڑا خوبصورت قیامت اور زندگی میں ہوں، مارتھا سے کہا تھا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اور یسوع مسیح کے آپ دیکھیں کلام بھرا پڑا ہوا جہاں پر یسوع مسیح نے بار بار یسوع مسیح نے کہا ہے، اور یسوع مسیح نے 16 باب کی 6 آیت میں بڑا خوبصورت یسوع مسیح نے کہا، اور یہ آج بھی خدا یسوع مسیح اپنے خوابوں میں، اپنے ویژنز میں لوگوں کے اوپر یہ آیت جو ہے وہ اس کو کوٹ کرتا ہے۔ کوئی یسوع مسیح نے جو ہے وہ یوحنا 14 باب 16 آیت میں کہا، یسوع نے کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ کوٹ کر رہا ہے خداوند، آج بھی یہ آیت کوٹ ہو رہی ہے،
मुसलमान जो हैं लोग, जो जितने भी गैर मज़हब के लोग, जिनको जो ज़िंदगी को तलाश करते हैं, जो सच्चाई तलाश करने के पीछे पड़े होते हैं, और एक फिर उनकी ज़िंदगी में स्टेज आता है कि वो बैठते हैं और दुआ करते हैं कि अगर खुदा तो ज़िंदा है तो मुझ पर ज़ाहिर हो। कितने वो डेस्पर हो जाते हैं कि वो फिर अपनी ज़िंदगी पे को भी ख़तर करना मांगते हैं कि अगर खुदा नहीं है, मैं ऐसे ही, तो फिर मैं इसी मुश्किलात से मैं क्यों गुजर रहा हूँ, इससे बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। फिर उस स्टेज जब आते हैं लोग, मैंने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी हैं, यूट्यूब फेसबुक की गवाहियाँ भरी पड़ी हैं, जब इस स्टेज पे आते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना मांगते हैं, उससे वो पहले एक फ़ैसला करते हैं कि मैं अब जब कोई भी मतलब मैं किसी में भी चल रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, कोई भी हूँ, एथियस्ट हूँ, मैं एक दफ़ा यार एक ट्राई करूँगा। ये कहते हैं यस्सु यस्सु यस्सु, चलो मैं ज़रा देख लेता हूँ, मैं दुआ करके देखता हूँ कि यस्सु है तो रियल है, तो फिर मुझे खुदा तू नज़र आ। और मैंने देखा है कि आप टेस्टमनीज आप देखें, ये टेस्टमनी जो है वो ज्यूज़ भी दे रहे हैं, ये टेस्टमनी सिख, हिंदू, मुस्लिम, एथियस्ट भी दे रहे हैं। एक बाबा था तकरीबन वो 80+ था, काफ़ी बूढ़ा हो गया, सारी उम्र उसने कहा कि कोई खुदा नहीं है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था। तब फिर एक स्टेज आया उसकी ज़िंदगी में, जब वो मरने के करीब हुआ, उसने कहा यार मैंने क्या किया। एक दफ़ा सोचा उसने कि यार मैं तो खुदा का इनकार करता हूँ, अगर खुदा वाकई हुआ तो मैं मरने जा रहा हूँ, अगर खुदा आगे मुझे खुदा ही मिल गया, यीशु मिल गया जिसका मैं इनकार करूँ, तो क्या होगा मेरे साथ, चेक तो करूँ यार, मैं तो ऐसी जो था वो ऐसी बातें करता रहा सारी उम्र। तो उसने दुआ की दिल से, उसने कहा खुदाम यीशु, अगर खुदाम तो कोई खुदा है और अगर यीशु है तो आई वांट टू सी हिम लास्ट टाइम बिफोर आई मेक एनी डिसीजन इन माई लाइफ। तो उसने जो है वो रात को जब सोया तो यीशु मसीह उसके ख्वाब में आया, और यीशु मसीह ने कहा कि तूने देखा तूने क्या काम किया, तूने कितने लोग तेरी इन बातों की वजह से, ये अमेरिका का वाक़या है, मुझसे दूर हो गए हैं, और कितने जो है तूने गलत बयानी की है। मुझे पता नहीं, मैं मौजूद हूँ, खुदा मौजूद है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, बनाने वाला मैं ही हूँ, तो मैं ही निजात देता हूँ। तो उसने कहा कि खुदा मुझे माफ़ कर दे, खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती की है, मेरी वजह से बहुत सारे लोग तुझसे दूर हो गए। तो फिर भी उसने खुदा ने उसको माफ़ कर दी। उसने कहा तो जब भी माफ़ कर सकता हूँ, तो माफ़ करने वाला खुदा है। आप जब भी आप अपने कोई भी गुनाह किया हो, बेशक खुदा की मुखालफत भी की हो, इस तरह जो थे वो हम देखते हैं कि पत्थर से इनकार कर दिया। उसके बाद पलूस ने क्या किया कि उसने जो है वो यहूदियों को पकड़ता था, इसका हम खत पढ़ रहे हैं अभी, और ये बड़ा जुल्म करता था, यहाँ तक स्टीफनस के कत्ल में भी इसका हाथ था, जो शहीद हुआ था। तो ये बड़े उल्टे सीधे काम इसने किए। जब खुदा के पास आ गया तो हमने इसको पकड़ लिया, जब दमिश्क की राह पे जा रहा था, तो इसने माफ़ी मांगी, तौबा की, तो माफ़ी मिल गई इसको। तो खुदा माफ़ करने वाला खुदा है। वो इंसान के पास ये ऑप्शन होता है, जब तक उसकी आखिरी सांस है उसके पास तौबा का ऑप्शन मौजूद है, और ये शैतान के पास नहीं है, सिर्फ इंसान के पास, जिसको खुदा ने अपनी सूरत पे बनाया है, जिसको खुदा ने नर और नारी पैदा किया है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। ये हम इंसान बड़े लकी हैं कि खुदा हमसे इतना प्यार करता है, और आखिरी दम तक, जब तक हमारी सांस जिंदा है, हम जिंदा हैं, तौबा कर सकते हैं, हमें निजात मिल जाती है, आखिरी दम पे मिल जाती है। कई लोगों को देखा हमने, जब डाकू को देखें, जब स्लीपर डाकू था, यीशु मसीह के साथ जो हैंग था, बेशुमार उसकी मिसालें हैं कि डाकू की बराबर फौरी मिसाल में पता चल जाएगा। डाकू जो था उसने बड़े डकैती मारी, पता नहीं क्या क्या उसने क्राइम किए थे, इसलिए उसको स्लीप पर लटकाया गया था, एक दाएं एक बाएं। एक डाकू ने कहा कि यीशु जब तो अपनी बादशाही में है तो मुझे याद करना, यानी यीशु पर ईमान लाया, उसको यीशु के बारे में याद, यीशु वहीं था, उसने लाजमी सुना होगा यीशु के बारे में कि वो तो ये तो अच्छा आदमी, ये तो निजात दहिंदा है, ये तो हमारा अच्छा रब्बी है, ये तो इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसको ऐसे ही उन्होंने पकड़वा दिया यहूदियों में हसद में आकर। तो उसने कहा यीशु जब तू याद अपनी बात मुझे याद करना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, यानी तूने तौबा की है, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। फरदौस में उससे साथ था वो। देखिए कितना वंडरफुल हमारा खुदा है। इसलिए हमारी निजात जो है यकीनी है, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी निजात, हमारे गुनाहों की माफ़ी यकीनी है, बशर्ते हम ईमान के साथ उस पर चलें। तो वो देख रहा था जो डिलीवरेंस में ख़ास तौर पे, तो डीमन जो थी वो मान रही थी, हाँ ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी है, यीशु मसीह जो है वाकई है।
और कई चीज़ों की इग्नोरेंस जाहिर करी थी, वो मकारी करी थी वो। लेकिन खुदा के बंदे ने कहा कि इग्नोरेंस इज नॉट ए ऑप्शन, इग्नोरेंस इज नॉट ए, वो इग्नोरेंस करेगी उससे क्या होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो खुदा ने मुकर्रर किया वो कर दिया है, तो इग्नोरेंस सिर्फ वो कुछ जवाज़ नहीं है। हालेलुया। इसलिए खुदा ने हमें नजात दी, और नजात हमारी अब्दी नजात है, उसका फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात है कि जब रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में आता है तो क्या करता है, हमें गुनाह से आज़ाद करता है, हमारे गुनाह से निकालता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि रूह कुदस मेरी ज़िंदगी में गुनाहों से निकाला है, आस्ता आस्ता मुझे निकाल के और मुझे जो है वो रास्तबाजी की तरफ लाया है। अब मैं खुदा का शुक्र है, तेरे गुनाह से आज़ाद हूँ। खुदा ने ये काम किया, और उसके बाद फिर मौत के बंधनों से आज़ाद किया मुझे, मेरे ख़ानदान को। खुदा उनका काम है, क्योंकि उसने हमें निजात दी है। इस तरह सारे जनरेशन कर्स भी कैंसिल किए हैं, इचकराफत कोई उसका नहीं चल सकता। जहाँ खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। खुदा का रूह खुद ही संभालता है, खुदा संभालता है हमारी मुश्किलात को। ऐसी उसने थोड़ी कह दी है कि जो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाई। खुदा के सच्चा कलाम है, जो उसने कहा है वो पूरा होगा, उसमें कोई रद्दो बदल हो नहीं सकता। Nobody can change the Bible. Who can write new Bible और can change it? Nobody. ये खुदा जो है वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब के गॉड ऑलमाइटी खुदा का कलाम है जो कभी तब्दील नहीं हो सकता। जहाँ आज़ादी है वहाँ, जहाँ खुदा का रूह है, जहाँ खुदामंद है वहाँ आज़ादी। हमें गुनाह से हमें आज़ादी है, गुनाह हमारे मिट गए हैं, खुदा का शुक्र है। हमें खौफ और सर के निज़ाम से, रूहानी तरीके से निकल कर हम खुदा के बादशे में शामिल हो चुके हैं। हालेलुया। तो ये बात, इसलिए यीशु ने फरमाया अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तुम वाकई आज़ाद होगे। ये है अपना यूहन्ना 3:36 में लिखा हुआ, यूहन्ना 8:36 में लिखा हुआ। तो रूह कुदस में मसीह की मानत बदलता है। बड़ी खूबसूरत बात देखें जरा, रूह कुदस में रोज रोज जिंदगी बदलता जाता। जब मैं बता रहा था मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है और हो रहा है ऐसे ही, कि रूह कुदस हर रोज मेरी जिंदगी को बदलता है, मुझे बदलता है। और मुकस्सीन को जो उस पर ईमान रखते हैं बदलता जाता है रोज रोज। रूह कुदस रोज बरोज हमारी जिंदगी को क्या बदलता है, वो तब्दील करता है हमारे ख्यालात को, किरदार को, गुफ्तगू को, हमारी ख्वाहिशात को, हमारे ताल्लुकात को। ये तब्दीली पूरी जिंदगी जारी रहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी जिंदगी ये तब्दीली जारी रहती है जब तक हम जिंदा हैं। खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता रहता है, खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, तो कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता रहता है, और हमारे ख्यालात तब्दील होते रहते हैं, हमारे किरदार तब्दील होता रहता है, हमारी सोचें तब्दील होती रहती हैं, गुफ्तगू में तब्दीली आती रहती है, हम संजीदा होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। खुदा के कलाम के मुताबिक हम सी की मानत हम बनते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा उनका पाक रूह हमारी ज़िंदगी में करता है। और उसके जहाँ के हम शक्ल तो जहाँ बल्कि नहीं अकल हो जाने से अपनी क्या करो, रोमियो लिखा है, रोमियो जो है वो रोमियो का खत उसका जो है वो 12 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि क्या करो, अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हालेलुया, बदलना दिन ब दिन बदलना। तो मसीह यस्सु की मिसाल जो है वो ज़िंदगी की हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त है। मसीह यस्सु की ज़िंदगी की मिसाल हम देखते हैं। तो कई एक बेईमान मसूल लेने वाला यहूदी था। जब यस्सु से मुलाकात हुई तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसने ऐलान किया कि जिन लोगों से उसे नाहक लिए उससे वापस करेगा और गरीबों को मदद करेगा। हालेलुया। यस्सु ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया। तो ये है यस्सु मसीह जो है वो ज़िंदगी बदल देता है, ज़िंदगी बदलने वाला खुदा है। तो पुराने यादरा में अब देखिए, हम पुराने यादरा मूसा को देखें। ये मूसा खुदा के ज़ोर से वाक़फ़ था, उसका चेहरा खुदा के जलाल से चमक रहा था। तो पौलुस बताते हैं कि आज मसीह यस्सु के वसीला से ईमानदारों को उससे भी बड़ा और दायमी जलाल हासिल होता है। रूह कुदस हमारे अंदर सुकूनत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रूह कुदस हमारे अंदर सुकूनत करता है। अंदाज़ा करें कि पर मूसा जो था वो तो जाता था और थोड़ी देर के लिए जाता था, फिर आ जाता था। कितना नूर उस पर होता था और नूर रास्ता रास्ता ख़त्म होता जाता था। लेकिन अंदाज़ा करें कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में रहता है, आपके दिल रूह में आप पे रहता है, खुदावंद का पाक रूह आपके साथ रहता है। तो कैसा आपका चेहरा, आपका जलाल, कैसा आपका जलाली खुदावंद आपको बनाता जाता है, अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं भी
46 ईयर से खुदा के साथ चल। जब मैंने खुदा को कबूल किया था 1947 में, उस वक्त मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ गैर ज़ुबान के साथ, और उस वक्त से खुदा के पाक रूह ने मेरी ज़िंदगी में तब्दीली करना शुरू कर दी, और खुदा ऐसे लोगों को लाया मेरी ज़िंदगी, जैसे बीवी, मेरे जो ससुराल वाले, मेरे कितने अजीज़ बहन भाई खुदा के खादमीन, जो मेरे लिए दुआ करते रहे। मैं कभी गिर भी गया तो अपनी ज़रूरत की वजह से कैसी आगे पीछे हुआ, खुदा खड़े किए दुआ करने वाले इंटरसेसर मेरे साथ, खुदा मेरे लिए दुआ करने के लिए खड़े रहे, दुआ करते रहे, और खुदा ने मुझे तब्दील कर दिए वो बिल्कुल। और मैं रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, दुआ में रहता हूँ 24/7, और ज़्यादातर दुआ में रहता हूँ। फिर खुदा कलाम को पढ़ता हूँ, खुदा की प्रीचिंग भी करता हूँ। खुदा ने मिनिस्ट्री भी दे दी है, ज़िंदगी में सुकून दी है, बहुत सारी बरक़ात दी है, खुदा का शुक्र है। रूहानी बरक़ात, जो जिस्मानी बरक़ात है, अपनी पहचान भी दी है, और खुदा हर रोज़ मुझे तब्दील करता जा रहा है। मेरी जो है वो गुफ्तगू, जो है वो ख्यालात तब्दील होते हुए हैं, खुदा के फजल से रूहानी हो गए हैं। और जो है मेरे किरदार भी खुदा ने तब्दील किया है, गुफ्तगू तब्दील कर दी है, मेरी ख्वाहिशों को खुदा ने तब्दील कर दिया है, मेरे तल्लकात को खुदा ने तब्दील कर दिया। जो पुराने तल्लकात से ना, वो जो जंटों के साथ पुराने काम करने वालों के साथ वो बदल गया, अब खुदा के लोगों के साथ मेरे तल्लुकात हैं। तो ये सारी तब्दीली खुदा उनका पाक रूह ने मेरी ज़िंदगी में की है। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में खुदा रहता है, हालेलुया, अपने कलाम और अपने रूह की सूरत में मेरे साथ रहता है। तो ये है मेरी गवाही छोटी सी। तो हम देखेंगे कि आज अमली चीज़ें उन्होंने क्या सीखी हैं इस चैप्टर में हमने, कि अपनी ज़िंदगी को मसीह का जिंदा गवाह बनाना है, हमने बनाए, ये हमने करना है। हमने अपनी ताकत पर नहीं, खुदा पर भरोसा करना सीखें, हालेलुया। फजल के लिए नए अहद में ज़िंदगी गुजारें, रोज़ाना दुआ बाइबल के मुताले में हर वक्त मसरूफ़ रहें, यानी कि रोज़ाना दुआ और बाइबल के मुताला में वक्त गुजारें ज़्यादा से ज़्यादा। आज हमने सीखी है चीज़ें, हमने सीखी हैं। रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी बदलने दें, रूह कुदस को काम करने दें अपनी ज़िंदगी में। रूह कुदस को रंजीदा ना करें। रंजीदा हम कैसे करते हैं? जब अभी मैं देख रहा था हवाला वो, कि हम रूह कुदस को रंजीदा कर देते हैं। जब क्या लिखा है कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर बखल से करने के लिए मोहर हुई, और हर तरह की तल्ख मिजाजी, कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदगोई में तुमसे दूर की जाए, हालेलुया। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने हमारे कसूर माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो, दरगुजर करो। मियाँ बीवी हो सकते हैं आपस में, आप एक दूसरे को माफ़ करने वाले अच्छे हो सकते हैं, वो बहन भाई, रिश्तेदार, आपके जो पड़ोसी हो सकते हैं। तो आप किसी पर गुस्सा ना करें, तल्ख मजाजी ना करें, कोशिश करें कि फौरी कहरो गोल में ना आ जाए, गुस्से में ना आ जाए, बर्दाश्त करें। अब मेरे खुदा ने इतनी तब्दीली की है कि मैं पहले बड़ा गुस्सा करने वाला, 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 15 साल, लेकिन खुदा ने मुझे चेंज किया। अब कोई बात करते तो मैं हंसना शुरू कर देता हूँ, कहते तू हंसता रहता है, हम गुस्से में तू हंसना पे तो ये खुदा की तब्दीली, यही तब्दीली होती है एक्चुअली यही आपकी तब्दीली, जो मैं कह रहा था। खुदा हमारी गुफ्तगू में, हमारे करैक्टर में, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली करता है। फिर ये खुदा का पाकू का काम है, वो तब्दीली करता है हमारे ख्यालात में, हमारे किरदार में, हमारी गुफ्तगू, हमारी ख्वाहिशात, हमारे तल्लुकात में खुदा तब्दीली करता है। इसलिए खुदा के रूह को, पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में आपको बदलने का मौका दें। उसको कहें खुदा तू ही मुझे बदल, मेरे ख्यालात को बदल के, मेरे करैक्टर को बदल। तो मसीह की दी हुई जो है वो आज़ादी, जो मसीह ने हमें आज़ादी दी है, चलें उसको। यानी कलाम को जब आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा हमें क्या आज़ादी हासिल है। तो आज़ादी को, खुदा कलाम को पढ़ के समझ के उसके मुताबिक चलें, हालेलुया। दूसरों को मसीह यीशु की खुशखबरी सुनाएं, दूसरों को तो खुशखबरी सुनाएं कि यीशु ने हमें आज़ाद कर दिया है, हमारे कर्ज आज़ाद हो चुके हैं, यीशु के लहू कुदरत से निजात पा चुके हैं, हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, बशर्ते कि हम उस पर ईमान लाएं, तौबा करें और अपनी राहों को तब्दील करें, उसके साथ चलें। तो फिर हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, देखते हैं हवाला, बड़ा खूबसूरत हवाला है जो देखेंगे। हवाला यीशु मसीह ने 10 की क्या खूबसूरत हवाला दिया है। यीशु ने कहा कि यूना 10 पर उसकी पढ़ रहा हूँ मैं 27 रहते, मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। यानी हम खुदा अपने लोगों के बारे में कह रहे हैं, हमारे बारे में कह रहे हैं, मेरे आपके बारे में कह रहा है। दाऊद कहता है कि मैं
मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं जानता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैंने हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और अब तक कभी हलाक ना होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कौन छीन सकता है? मैं खुदा उनके हाथ से कुछ छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। खुदा ने जो कहा वैसे ही होना है, तो खुदा कहता है वैसे ही हो रहा है और वैसे ही होता रहेगा। तो उनके लोगों के तो कोई उनको छीन नहीं सकता। तो हम खुदा की बात छीन सब लोग जा रहे हैं और तो ये है, छीन नहीं सकता। और मैं और छीन मेरे लिखा है छीन नहीं सकता मेरा बाप जिसने मुझे दिए सबसे बड़ा है, कि उनके बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। तो खुदा ने कहा मैं और बाप एक हैं, हमारे हाथ से कौन छीन सकता है? जो यीशु पर ईमान रखते हैं, खुदा के लोग हैं, उनको कौन छीन सकता है? यीशु मसीह से कोई छीन सकता है? Nobody can snatch them। खुदा की बातचीत के लिए है, खुदा की बातचीत में जाएंगे यीशु के फजल से। तो ये बात है कि आज जो इसमें आज हमने देखा, इस पैगाम ने सीखा हमें आज दुनिया भर में, खसूसन नीदरलैंड में, यूरोप में हम देखें, पाकिस्तान दिनों ममालिक में हम देखें अगर तो बेशुमार लोग जो हैं क्या हकीकी उम्मीद और अमन की तलाश में हैं। लोग तलाश कर रहे हैं, लोग ये नहीं कि लोग तलाश में हैं। लोग किसकी तलाश में है? वो हकीकी उम्मीद और अमन की तलाश में है। बाद लोग मजहब, दौलत और दुनियाई कामयाबी में इत्मीनान ढूंढते हैं, लेकिन हकीकी तब्दीली सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से आती है। मेरे अजीजों, आज हमें खुदा बुलाता है कि हम अपने किरदार, मोहब्बत, पाकीज़गी और खिदमत के ज़रिए से ज़िंदा मसीह के गवाह बन जाएं, ताकि लोग हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल देखें। हालेलुया। खुदा हमें बुलाता है, तो हम बुलाता है और कहता है कि आ जाओ। मैं कवाला भी देख रहा था, यीशु मसीह आगे हम देखेंगे जाके, ये 5वें बाब पे हैं, लिखा है कि पौलुस कहता है, ये 5वें बाब पे, यही दूसरा करंथियों और उसका 5वें बाब पे, बस हम मसीह की एलची हैं। वो हमारे वसीला से खुदा इल्तिमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। क्या है? हम खुदा की एलची और खुदा की तरफ से, जैसे मैं भी आपके साथ कलाम कर रहा हूँ, कई दफ़ा मैं भी रिक्वेस्ट भी करता हूँ, प्लीज़ रिपेंट, प्लीज़ ब्रदर रिपेंट। तो मिन्नत कर रहे हैं ना खुदा की तरफ से हम लोग। मैं भी करता रहता हूँ कई दफ़ा लोगों के साथ। तो हम खुदा की तरफ से क्या करते हैं? मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल कर लो, तौबा कर लो भैया। जो गुनाह से वाकिफ था उसी को हमारे गुनाह ठहराया है। यानी यीशु मसीह जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को हमारे गुनाह ठहराया है, इसलिए इस पर ईमान ले और ज़िंदगी पा जाओ। ये हम मिन्नत करते रहते हैं। ये पौलुस यहाँ कहता है, जो गुनाह से वाकिफ था उसी को उसने हमारे लिए गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। तो ये है कि हमें इस बात की चर्चा करने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत। तौबा का वक्त है। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना निजात देंदा और खुदा कबूल नहीं किया, तो आज ही ये खुदा यीशु के लिए अपना दिल खोलें और तौबा करें, गुनाहों को इकरार करें, ईमान लें कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए सलीब पर जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। उसने दुआ की कि आपके दिल का पर्दा हट जाए और रूह कुद्स के वसीला से आप नई जिंदगी पाएं। तो इसकी तौबा करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम दुआ करेंगे अभी, और जो दुआ करना चाहते हैं मेरे साथ कर सकते हैं। कोई अपनी भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं मेरे साथ करना चाहते हैं, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, सबके लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने यीशु मसीह के वसीला से हमें नया अहद अता फरमाया। तेरा शुक्र हो कि रूह कुद्स हमें जिंदगी, आज़ादी और हकीकी तब्दीली बख्शता है। मेरे दिलों में पर से हर पर्दा हटा दे बाप, हमें अपनी हजूरी में बढ़ा और हमें ऐसा बना के हमारी ज़िंदगी तेरे जलाल की अक्कासी करे। हमें अपने रूह के वसीला रूह से भर दे, ताकि हम जिंदगी में पाकीज़गी, मोहब्बत और वफादारी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारें। तेरे को रूह के वसीला से बहुत से लोगों को मसीह तक ले आएँ। खुदा हम गुनाहगार हैं, खुदा हमें माफ़ कर, खुदा पाक और साफ़ कर, हमें अपने खून से धोकर पाक और साफ़ कर। खुदा वो खुदा तेरा नाम जलाल पाए। खुदा हम गुनाहगार हैं, माफ़ कर। मैं भी गुनाहगार हूँ, हम सब गुनाहगार हैं, माफ़ कर। तेरा शुक्र तूने हमें माफ़ किया, अपने खून से धोकर पाक और साफ़ किया, और हमारे नाम पर किताबें लिखे हैं। तो एक तेरा इस्तकबाल करेंगे खुदा। तेरा फजल ही हमारे, तेरे फजल से तुझ पर ईमान लाने से हमें निजात मिल चुकी है। हालेलुया। खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिए। थैंक यू जीसस, तूने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। हालेलुया। खुदा
अपने बेटी बेटियां बना ली है, तेरा शुक्र हो। जब हमने तौबा की, जब हमने तौबा की दुआ की तो हमने माफ़ कर दिया ऑलरेडी खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी तारीफ हो, सारी बरकत की तेरा शुक्र हो। कलाम को जो बीज बोया गया 100 गुना 60 गुना पाल रहा है, सुनने सुनाने वाले को बरकत देना, तेरा नाम दे रहा भाई यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। अरे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं कसूरों को माफ़ कर, या ज़माइश में अल्लाह के बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा, आमीन आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे मसीह के प्यारे लोगों। और अभी हम मुलाकात करेंगे जो है वो, इसके बाद हम फौरी तौर पे भी जा रहे हैं इंग्लिश सेशन में, तो मुलाकात होगी आपसे। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है वो इंग्लिश सेशन भी कर सकता है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहा करें, साथ और शेयर भी करते रहें तो खुदावंद आपको बरकत दे। कल मुलाकात होगी यीशु के फजल से। गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो इन जीसस नेम। और कल हम जो है हम चौथा बाब देखें, दूसरा करंथियों चौथे बाब की स्टडी करेंगे यीशु के फजल से। गॉड ब्लेस, सी यू टुमारो जीसस नेम, आमीन।